हाँ, तो hello students, let's start from where we had left. We had discussed table 1.3 and table 1.4. And table 1.3 shows the per capita income of selected states, that is Haryana, Kerala and Bihar. According to table 1.3, Haryana per capita income is 1,62,034. Kerala's per capita income is 1,55,516 and Bihar's per capita income is only 34,168. So here we see that Haryana is leading as per the criteria of per capita income as the most developing state. लेकिन जैसा बताया गया कि केवल पर कैपिटा इनकम से ही हम कंपेयर कर नहीं कर सकते, हमें कुछ और भी क्राइटेरियन लेना पड़ेगा. तो टेबल जो 1.4 है, सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार. यहाँ पर स्टेट दिया है हरियाणा, केरला, बिहार. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000, दैट इज़ लाइव बर्थ्स, 2015 और 16 का दिया है. मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो बच्चे जन्म के बाद कम से कम एक साल के अंदर अंदर ही वो गुजर जाते, तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी ये केवल वही जिंदा बच्चे, पेट में मरे हुए बच्चे की बातें नहीं कर रहे. ये जो बच्चे जनते हैं, जिंदा जन्म लेते हैं और एक साल के अंदर वो गुजर जाते हैं, उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं. फिर लिटरेसी रेट लिया है 2011 का, परसेंट वाइज लिया है, और नेट अटेंडेंस रेशो लिया है स्कूल से 100%, यानी 100% के. तो एज कैटेगरी 14-15 साल की उम्र के बच्चों की है 2013 और 2014 में. तो उसमें क्या देखते हैं हम, हरियाणा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हरियाणा का 36 पर 1000 बच्चे हैं जो एक साल से पहले ही गुजर जाते हैं. केरला में केवल 12 है और बिहार में 42, यानी बिहार यहाँ पर भी बैड कैटेगरी में लीड कर रहा है. फिर लिटरेसी रेट में देखो तो लिटरेसी रेट में हरियाणा 82% पर है, यानी 82% लिटरेट है, काफ़ी अच्छा है. लेकिन केरला तो 94 है, वो उससे बेहतर है. और बिहार जो है वो 62 पर ही है, तो बिहार फिर से पीछे ही है. और नेट अटेंडेंस रेशियो में अगर हम देखते हैं तो हरियाणा में 61% बच्चे अटेंडेंस देते हैं, रेगुलरली स्कूल आते हैं. केरला में 83% बच्चे रेगुलरली स्कूल आते हैं. लेकिन बिहार फिर से नीचे है, यहाँ पर केवल 43 बच्चे ही स्कूल आते हैं पर 100. सो व्हाट डज दिस टेबल शो? द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट in Kerala, out of 1000 children born, 12 died before completing 1 year of age. But in Haryana, the proportion of children dying within 1 year of birth was 36, which is 2 times more than that of Kerala. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala, as shown in table 1.3. Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday. How painful it must be to these parents. Next, note the year to which this data pertains. It is 2015, so we are not talking of old times. It is nearly 70 years after independence, when our metro cities are full of high-rise buildings and shopping malls. The problem does not end with infant mortality rate. The last column of table 1.4 shows around half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8th. This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class would be missing. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you're reading now. Public facility. तो यहाँ तक का समझ गया आपको? Public facility. How is it that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala, but lags behind in these crucial areas? The reason is, money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. जरूरी नहीं कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है. So, income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. For example, normally, your money cannot buy you a pollution-free environment,
or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Money may not also be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community takes preventive steps. ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. खुद अमिताभ बच्चन को कोरोना वायरस हो गया है ना. ताली बजाओ थाली बजाओ, लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन को कोरोना वायरस हो ही गया. Actually, for many of the important things in life, the best way, the cheapest way is to provide these goods and services collectively. Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? Would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government or the society has not provided adequate facilities. तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है कि सिक्योरिटी का एग्जाम्पल. अगर आपके एरिया में चोरी होती है तो क्या हर घर में एक चौकीदार होना चाहिए कि सब मिलकर एक चौकीदार को अपॉइंट कर ले, एक या दो चौकीदार को अपॉइंट कर ले जो आपके इलाके में पहरा देते रहे रात को? तो सस्ता क्या रहेगा कि कलेक्टिवली किसी चौकीदार को अपॉइंट करना. वैसा ही अगर आप मानते हैं कि आप कोई गाँव में रहते हैं और गांव में केवल आप ही को पढ़ाई करना है, बाकी बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लग रहे हैं, तो फिर क्या गांव में कोई स्कूल ही नहीं होगा? गांव में कोई स्कूल नहीं है तो अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपके पेरेंट चाहे तो आपको दूसरे गांव में जहां पर स्कूल है वहां भेज सकते हैं. वह भी अगर आपके पेरेंट्स चाहे तो, है ना. तो अगर गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटीज़ देती है तो फिर अच्छा है कि गाँव के जो बाकी बच्चे वो स्कूल जाके पढ़ाई कर सकते हैं. लेकिन आज भी बहुत सारे गाँव में लड़कियां जो है वो ज़्यादा नहीं पढ़ती हैं क्योंकि उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ ही नहीं दी गई कि वो जाके पढ़ाई कर सकें. Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities. Similarly, in some states, the public distribution system PDS functions well. Health and nutritional status of people of such state is certainly likely to be better. Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? Table 1.6 also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy. तो ये टेबल जो 1.6 जो टेबल है 1.5 1.6 टेबल जो है वो पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 पर है. उसमें हम देख सकते हैं 1.12 में क्या दिखा रहा है. 1.5 में जो पेज नंबर 12 पर है 1.5 एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश. कैटेगरी मेल फीमेल. लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन मेल 76%, फीमेल 54%. Literacy rate for rural children in age group 10 to 14 years, male 90%, female 87%. Percentage of rural children aged 10 to 14 attendance school, male 85%, female 82%. तो हर जगह देख रहे कि फीमेल जो है वो पीछे जा रही है, चाहे वो लिटरेसी रेट में हो, चाहे वो 10 to 14 ईयर्स की कैटेगरी में हो, या फिर उनके अटेंडेंस रेशो है उसमें भी फीमेल जो है पीछे चली जाती है. और टेबल 1.6 में हम क्या देखते हैं, सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2015. कंट्रीज़ है श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश. तो अगर हम कंट्री ग्रॉस नेशनल इनकम GNI से करते हैं पर कैपिटा 2015
एज पर US डॉलर कंपेयर करते हैं तो श्रीलंका इज़ फार बेटर देन इंडिया। श्रीलंका देखो 10,789 पर पर्सन पर डॉलर है। PPP डॉलर मतलब पर पर्सन पर डॉलर। तो श्रीलंका में एक पर्सन एक इंसान जो है वो 10,789 पर पर्सन पर डॉलर कमाता है। इंडिया में 5,663, म्यांमार में 4,943, पाकिस्तान में 5,031, नेपाल में 2,377, बांग्लादेश में 3,341। यहाँ पर इंडिया सेकेंड नंबर पे है ज़रूर, लेकिन श्रीलंका डबल, ऑलमोस्ट डबल है हमसे, हाँ ऑलमोस्ट वो डबल के आसपास में है। और अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं एट बर्थ, 2015 की ही बात कर रहे हैं अपन, तो श्रीलंका में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 75 है पर 1,000 बर्थ्स। शायद ये पर 100 बर्थ्स की बात कर रहे हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 बच्चे जन्मते हैं, उसमें से 75 बच्चे बचते हैं, लेकिन इंडिया में केवल 68.3 बच्चे बचते हैं। और बाकी इसमें अपने से थोड़ा कम है, लेकिन म्यांमार में कम है, पाकिस्तान में कम है, नेपाल और बांग्लादेश में ज़्यादा है। फिर अगर हम मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 यानी अबव एंड अबव, तो स्कूलिंग का एजुकेशन के क्षेत्र में देखते हैं, उसमें भी श्रीलंका हमसे आगे है, हाँ, और इंडिया सेकेंड नंबर पे है। और HDI रैंक इन द वर्ल्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI का मतलब क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी श्रीलंका 73 है उनका, और हम लोग बहुत पीछे श्रीलंका से 131 है। तो इस प्रकार से जो ये 188 कंट्रीज़ में से निकाला गया है, तो हमारा जो रैंकिंग है ह्यूमन, ये रैंक है, ठीक है, ये कोई पॉइंट्स नहीं है जो हमने स्कोर किया है। श्रीलंका 73rd नंबर पे, तो हम 131st नंबर पे हैं, तो काफ़ी पीछे है श्रीलंका से। तो हम क्या देखते हैं कि श्रीलंका एक छोटा देश होने के बावजूद भी इंडिया को हर चीज़ में पीछे छोड़ाया है। So isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? So table 1.6 also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy. Many improvements have been suggested in calculating HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। HDI का फुल फॉर्म क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मैनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HDI एंड मैनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बट बाय prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizen of a country. तो डेवलपमेंट के आगे क्या लगाते हैं, ह्यूमन लगा रहे हैं। तो यानी डेवलपमेंट किस बात पे कर रहे हैं कि ह्यूमंस के लिए, इंसान के लिए, इंसान की लाइफ को इजी बनाने के लिए, इंसान की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो डेवलपमेंट होता है उसे ही डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो अगर अफ्रीका के बारे में सोचो या कई जंगली इलाके से, तो वहाँ पर डेवलपमेंट क्या रहेगा, पेड़ पौधे, जिसके पास ज़्यादा जंगल रहेगा वो ज़्यादा डेवलप रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर इंसानों के हिसाब से सोचा जा रहा है। Do you think there are certain other aspects that should be considered in measuring human development? क्या और भी कोई कंपोनेंट्स है, और भी कोई एस्पेक्ट्स है जिस पे हम सोच सकते हैं कि हाँ अगर ऐसा होगा तो इंसान और डेवलप होगा। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलप होना एक बात है, उसको सस्टेन करना, उसको बरकरार रखना, ये एक दूसरी बात हो जाती है। सपोज फॉर द प्रेजेंट that a particular country is quite developed. We would certainly like this level of development to go up further, or at least be maintained for future generations. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. तो हर किसी की ये इच्छा होती है कि जो अभी डेवलपमेंट हमने किया है, ये डेवलपमेंट या तो इम्प्रूव हो जाए या इसी डेवलपमेंट को बरकरार रखा जाए आने वाले जनरेशन्स के लिए। लेकिन कई साइंटिस्ट हमको वार्निंग दे रहे, चेतावनी दे रहे कि जिस प्रकार से हम डेवलप कर रहे हैं ये जनहित में और देश हित में और वर्ल्ड हित में
सही नहीं है, ये सही ठीक नहीं है। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो ये लेखक क्या कहते हैं कि हमने ये दुनिया हमें हमारे पूर्वजों ने हमको दान में नहीं दिया है, हमने इन्हें अपने आने वाले संतानों से हमने उधार पे लेकर रखा है। हमें उनके लिए इसको बचा कर रखना है, उनके लिए इसको बरकरार रखना है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज सो थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल। साइंटिस्ट ऐसा क्यों कहते हैं कि हमने इस वर्ल्ड को आने वाले जनरेशन के लिए बचा कर रखना है। एग्जाम्पल 1, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ ग्राउंड वाटर इन इंडिया का। Recent evidences show that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. Nearly one-third of the country is overusing the groundwater reserves. In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using this resource continues. Groundwater overuse is particularly found in the agriculturally prosperous regions of Punjab and Uttar Pradesh, hard rock plateau areas of central and south India, some coastal areas and the rapidly growing urban settlements. तो एक उदाहरण दिया है यहाँ पर किस प्रकार से वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल सालों साल नीचे और नीचे और नीचे जा रहा है। खास करके यहाँ पे 3000 डिस्ट्रिक्ट्स के रिपोर्ट लिए हैं और ये पास्ट 20 साल में, जो बीते हुए 20 सालों में किस प्रकार से पानी का जो स्तर है वो नीचे जाते जा रहा है। नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका ओवर यूज़ हो रहा है, खास करके जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, जैसा पंजाब और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है। यहाँ पर पानी नीचे चला गया। प्लेटू रीजन में, जैसा अपना इलाका जो है प्लेटू रीजन में, यहाँ पर पानी नीचे चला गया और कुछ कुछ कोस्टल इलाके में भी पानी काफ़ी नीचे चला गया है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। These resources are replenished by nature as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing the resources. Non-renewable resources are those which will get exhausted after years of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know of earlier. New resource is in this way add to the stock. However, over time even this will get exhausted. तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है ग्राउंड वाटर का। तो बताया कि ग्राउंड वाटर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो अपने आप रिप्लेनिश होता है। हम पानी निकालते ज़रूर लेकिन पानी भरते नहीं हैं। तो बारिश के पानी से वापस से जो एक्वाफायर्स होता है, एक्वाफायर्स में ये पानी चला जाता है और पानी वापस से रिप्लेनिश हो जाता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा यूज़ करें, जितना ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करें और उतना पानी हम वापस से ज़मीन में नहीं डालते हैं, नहीं जाता है, बारिश में नहीं आता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज है जो रिन्यूएबल है और बहुत सारे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल है। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कोल हो गया, आयरन ओर हो गए, ये कभी ना कभी ख़त्म होने वाले रिसोर्स है। हाँ, अपने पास कुछ स्टॉक्स रहते हैं, रिजर्व में स्टॉक्स रहते हैं ज़रूर, और हम हर साल कुछ नए नए स्टॉक्स, नए नए रिजर्व्स तलाश लेते हैं और ये हमारे स्टॉक में ऐड हो जाते हैं। लेकिन कभी ना कभी ये भी ख़त्म होने वाला है, ये भी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। For example, crude oil that we extract from the earth is a non-renewable resource. However, we may find a source of oil that we did not know of earlier. Explorations are being undertaken all the time. तो ऐसा भी हो सकता है कि हम अपना जो ऑयल रिजर्व्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कभी ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन फिर हमें एक कुछ नया रिसोर्स मिल जाएंगे जो हमने पहले नहीं ढूंढा। तो इसके लिए हर साल हर वक्त एक्सप्लोरेशन चलते रहते हैं नए नए रिजर्व्स ढूंढने के लिए। Example 2, exhaustion of natural resource. Look at the following data for crude oil.
टेबल 1.7 क्रूड ऑयल रिजर्व्स, रीजन और कंट्री, मिडल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द वर्ल्ड. रिजर्व्स as per 2016 1000 million barrels. Number of years reserves will last. So मिडल ईस्ट में 803,000 मिलियन बैरल्स अभी भी रिजर्व्स है. मिडल ईस्ट के पास में एक बहुत बड़ी तादाद पर मिनरल रिजर्व्स है, यानी मिनरल ऑयल है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो उनके पास है. 803,000 मिलियन बैरल्स का उनके पास तेल अभी भी ज़मीन में रिजर्व में बचा हुआ है. और ये कितने साल तक का चलेगा? मिडल ईस्ट का तेल जो है कितने साल चलेगा? केवल 69.9 ईयर्स. आपकी उम्र अगर अभी 15 साल की है, आप 15 हो या 16 हो, तो इस पर आप ऐड कर लो 69 प्लस 15, तो ये हो गया 74 और 84, है ना. आप 84 ईयर्स के जब हो जाओगे, अगर आप 84 तक के जीते हो, तो आपको पता लगेगा कि मिडिल ईस्ट में तेल ही ख़त्म हो गया. अरब देश के पास अभी कोई तेल नहीं बचा. तो ये तो बहुत दूर की बात है. लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में कितना तेल बचा है? उसके पास केवल और केवल 48,000 मिलियन बैरल्स बचे हैं. केवल 48,000 मिलियन बैरल्स बचे हैं. यानी उनके 10 साल के अंदर, 10, साढ़े 10 या 11 साल के अंदर अंदर ये तेल का रिज़र्व ख़त्म हो जाएगा. तो ये तो आप और मैं, हम दोनों देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास का तेल ख़त्म हो गया और वो दूसरे कंट्री से तेल लेने की कोशिश कर रहा है. और वर्ल्ड के पास में कितना है ना, बाकी लोगों के पास, बाकी सब का मिलाकर, जिसमें इंडिया भी आगे शामिल हो गया, तो केवल 1691 यानी 1691.5 थाउजेंड मिलियन बैरल्स का तेल बचा हुआ है, जो कि आने वाले 50 साल तक का रहेगा. जब ये तेल ख़त्म हो जाएगा तब क्या करेंगे? सोचो तब क्या करेंगे. तो हमें जल्द से जल्द ऐसे कुछ और साधन ढूंढने पड़ेंगे जिसका हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. न्यूक्लियर साइंस हो गया ना, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया है. न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसा रिसोर्स है जो तेल के बजाय, तेल और कोयले के बजाय हम उसको यूज़ कर सकते हैं. हाँ, अगर आप वाटर से जनरेट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से एनर्जी जनरेट कर सकते हो, वाटर से अगर आप अपनी गाड़ी चला सकते हो, या हवा से गाड़ी चला लो, है ना. अगर हवा, सोचो ना, अगर आप हवा से गाड़ी चला लिए तो कैसा होगा? हवा में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, हाँ, हाइड्रोजन होता है. तो ये सब एनर्जी है. इसके द्वारा अगर हम गाड़ियाँ चलाएं तो अपने को पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. सोलर एनर्जी पे कर चलता है, विंड एनर्जी पे चलता है. तो पहले तो जहाज़ जो थे वो विंड एनर्जी पे चलते थे. वैसे ही कुछ अगर हम बना लिए, कुछ ऐसा जनरेट करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो जाए, सनलाइट से अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिए, उसको अपने बैटरी में स्टोर कर दिए, और उस बैटरी के द्वारा आप अपनी गाड़ियाँ चला लीजिए. ऐसा कुछ नया शोध करेंगे तो रिजर्व्स बच जाएगा. वरना ये अर्थ का अंत बहुत करीब है. बहुत जल्दी ही तेल को लेकर एक महायुद्ध हो जाएगा. सब वर्ल्ड को कंट्रोल करने का एक तरीका हो जाएगा. चाइना तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. चाइना ने कोशिश करा कि वो वर्ल्ड के ऊपर किस प्रकार से कब्जा कर ले, किस प्रकार से अपना बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में बहुत रिजर्व्स है. वो रिज़र्व अभी तक डिस्कवर नहीं हुए. वहाँ पे तेल बहुत है. जितना अरब के पास तेल नहीं है, जितना वर्ल्ड में तेल नहीं है, उतना तेल ऐसा बोलते हैं कि इंडियन ओशन में अभी गड़ा हुआ है. वहाँ से अगर हम एक्सप्लोर कर लिए तो. लेकिन इसकी जानकारी है लोगों के पास में, लेकिन इसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते क्योंकि वह वर्ल्ड के ट्रेड में आता है, वर्ल्ड जोन में आता है. इसे हमें परमिशन निकालनी पड़ेगी. तो चाइना अगर इस इलाके पे कब्जा कर लेगा तो चाइना इस ऑयल को निकाल लेगा, है ना. यहाँ जो भी कुछ मिनरल्स है उसको एक्सप्लॉइट करेगा. So the table gives an estimate of reserves of crude oil, column 1. More important, it also tells us for how many years the stock of crude oil will last if people continue to extract it at the present rate. The reserves would last only 50 years or more. This is for the world as a whole. However, different countries face different situations.
countries like India depend on importing oil from abroad because they do not have enough stocks of their own. तो इंडिया के पास तो इतना भी स्टॉक नहीं है. इमेजिन करो अगर यूएई या मिडिल ईस्ट को लगता है कि अब हमें तेल नहीं बेचना, ये तेल हम केवल अपने लिए यूज़ करेंगे, वो कल से ही तेल देना बंद कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, है ना. आज इतना आवाज़ उठा रहे हैं, आज कितनी कितनी शोर मचाई जा रही है कि देखो मोदी जी ने पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए. पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ाए, ये ज़रा सोचो तो, क्यों बढ़ाए, क्या कारण है. वैसे तो बोला जा रहा है कि जो पैसा पेट्रोल से आ रहा है, जो रेवेन्यू मिल रहा है, वो गरीबों में बांटा जा रहा है. ये इसमें कितनी ही सच्चाई है मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मुझे पता है कि अगर हम तेल महंगा होगा तो हम कम से कम यूज़ करने की कोशिश करेंगे. हम गाड़ियाँ बार बार बाहर नहीं निकालेंगे, पेट्रोल कम से कम यूज़ करने की कोशिश करेंगे. तो इस प्रकार से जो तेल का जो रिज़र्व है हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. हाँ, अगर वही मैं बता रहा हूँ कि अगर कल से यूएई बोल दे कि हमको अब तेल नहीं बेचना है, ईरान इराक ने मना कर दिया क्या तेल बेचना है, पाकिस्तान ने डील कर लिया उनके साथ में कि इंडिया को तेल नहीं देना है, तो फिर क्या हम क्या करेंगे. तो इस प्रकार से ये रिज़र्व्स को हमको बचा कर रखना होगा. द रिज़र्व्स वुड लास्ट ओनली 50 years और मोर. दिस इज़ फॉर द वर्ल्ड एज अ होल. However, different countries face different situation. Countries like India depend on importing oil from abroad because they do not have enough stock of their own. If prices of oil increase, this becomes a burden for everyone. There are countries like the USA which have low reserves and hence want to secure oil through military and economic power. USA बड़ा चालाक है. देखो कि USA क्या करता है कि उसको पता है कि उनके ज़मीन में उतना तेल नहीं है, तो क्या करता है, किसी मिडिल ईस्ट कंट्री के ऊपर दबाव डालता है वॉर के थ्रू या कुछ मिलिट्री पॉलिसीज़ के थ्रू, और उनसे जबरन वो तेल सस्ते में ख़रीद लेता है. यूएसए के पास जो 50 साल का जो तेल जो बचा है, 50-60 साल का जो तेल, 10 साल का ही तेल बचा उसके पास में, तो केवल 10 साल का जो तेल बचा है वो अपना तेल यूज़ नहीं कर रहा है, वो अपने रिज़र्व को वैसे का वैसे ही रख रहा है. वो बाहर देश से जितना तेल हो सके बाहर देश से सस्ते में ख़रीदने की कोशिश करता है, उनसे ख़रीद कर तेल ला लेता है. द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट राइजेज मेनी फंडामेंटली न्यू इश्यूज़ अबाउट द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. अच्छा, हम लोग ये तेल क्यों यूज़ करते हैं, या ये जो रिसोर्स जो मिल रहा है क्यों यूज़ करते हैं. हमें लग्जरीज चाहिए. ऐसा नहीं कि अगर हमको हमारे घर से निकल कर कहीं मार्केट जाना है, सदर जाना है, बरडी जाना है, अजनी जाना है, तो गाड़ी निकालो, किक मारो, बटन दबाओ, स्टार्ट करो और बुर्र चलो. ये एक बहुत इजी वे हो गया. आज से 20-30 साल पहले हर किसी के पास बाइक नहीं हुआ करते, हम लोग साइकिल चलाया करते थे, साइकिल से आना जाना, साइकिल रिक्शा हुआ करते थे, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी. तो तेल के बगैर भी ज़िंदगी हो सकती है. तो वापस से या तो हमको वापस से उसी पुराने फंडे पे जाना पड़ेगा, या फिर तेल केवल मिलिट्री पर्पस के लिए बचा कर रखो और अभी से साइकिलिंग का इस्तेमाल करो, पैदल जाओ, साइकिल चलाओ, घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करो. घोड़ा गाड़ी तो शहर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग, है ना, लेकिन साइकिल तो हम ज़रूर चला सकते हैं. तो इस प्रकार से हम देश हित में एक हेल्दी प्रैक्टिस कर सकते हैं. वी कैन स्टार्ट यूजिंग साइकिल इन प्लेस ऑफ मोटरसाइकिल्स, मोटर बाइक्स. ऐसा प्रण लीजिए और देश सेवा में योगदान दीजिए, हाथ बटाइए. द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट राइजेज मेनी फंडामेंटल न्यू इश्यूज अबाउट द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. तो आपको किस प्रकार का डेवलपमेंट चाहिए, किस नेचर का डेवलपमेंट चाहिए, ये सब एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं. ए, इज क्रूड ऑयल एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ कंट्री. डिस्कस. तो आपको ये डिस्कस करना, ये चर्चा करनी होगी, क्या जो पेट्रोल है, जो डीजल है, ये एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, क्या इसके बगैर भी डेवलपमेंट हो सकता है क्या. बी, इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल. व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन. इंडिया को तो बाहर से तेल मंगाना पड़ता है, तो हम क्या प्रॉब्लम देख सकते हैं, क्या समस्या आगे चल के क्या प्रॉब्लम आ सकती है इंडिया के लिए, है ना. जैसे मैंने बताया कि बाहर के देश ने बोले कि हमको अभी तेल नहीं बेचना है, तब हम क्या करेंगे. हमारे पास जो तेल है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा. अपने पास तेल होगा 20-30 सालों के लिए.
कि अपने पास उतना तेल नहीं है जितना अपनी पॉपुलेशन यूज़ करती है, तो फिर तब क्या करोगे? ये आपको एंटिसिपेट करना है। तो सोचो कितना इम्पोर्टेंट है पेट्रोल कम से कम यूज़ करने का। कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अगर आप भले ही इंडिया में आप जैसा हरियाणा में पकड़ लो, खेती बाड़ी होती है पंजाब में, हरियाणा में लोग क्या करते हैं, जब कटाई होती है, कटाई छटाई के बाद में, अनाज निकालने के बाद में वो अपने खेत में आग लगा देते हैं। जो स्टबल्स बचता है ना, जो कचरा बच जाता है उसको आग लगा देते हैं, और हवा चलती है पंजाब से दिल्ली की तरफ, तो यहाँ का पूरा धुआं जो है दिल्ली में चला जाता है। तो ये एनवायरनमेंट बाउंड्री नहीं देखता कि पंजाब वालों ने आग लगाई तो पोल्यूशन पंजाब में ही होगा, या पाकिस्तान वालों ने कुछ छेड़छाड़ी की तो इन्वायरमेंट सिर्फ केवल पाकिस्तान में होगा। एनवायरनमेंट जो है वो कोई बाउंड्रीज, कोई सीमाएं नहीं देखता है। आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर। Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. तो केवल एक देश का या एक शहर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पूरी समस्या पूरी वर्ल्ड की है। अगर किसी एक देश को खतरा है एनवायरनमेंट से, तो पूरे वर्ल्ड को इसका खतरा है एनवायरनमेंट से। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरिनियल एट ऑल टाइम। As a member of society and as individuals, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. So the deliberate of development continues. तो देखो, आपको कितना डेवलप होना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या पहुँचना है, ये आपको सोचना है। तो अभी भी डेवलपमेंट के बारे में ये चर्चा जारी है, डेवलपमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया। चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, अगले क्लास में हम देखेंगे, कुछ और करेंगे।